અર્જુનભાઈ, હલો હલો હલો. Hell, 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 hell. હલો. અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા સાહેબ અને બનુભાઈ અને અન્ય આપણા મહેમાનો ત્યાં શ્રીફળ અને અગરબત્તી ની સાથે આ વિકેટ ઉપર આ મેચનો શુભ પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. થોડી જ વારમાં ટોસ પણ થશે. રાષ્ટ્રગાનની સાથે નેશનલ એન્થમની સાથે આ મેચની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. પધારેલા દરેક મહેમાનો, દરેક ટીમના કેપ્ટન, દરેક ખેલાડીઓને અમે આવકારીએ છીએ. આ ટુર્નામેન્ટની અંદર જે 8 ટીમો હિસ્સો લીધો એ દરેકનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને શુભેચ્છા આપીએ કે સારું ક્રિકેટ રમો, સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટની સાથે ખેલદિલી, ખેલ ભાવના, ભાઈચારો, લાગણી, બસ આ ઉદ્દેશની સાથે જ આ ટુર્નામેન્ટને આપણે આગળ વધારવાનો છે. ખેલદિલી ક્રિકેટમાં જરૂરી છે મિત્રો. બંને ટીમના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી, તમે તમારી ટીમને લઈ અને વિકેટની બંને બાજુ આવી જાવ. વી આકારમાં આપણું પોઝિશન લ્યો. બંને ટીમના કેપ્ટનને નમ્ર વિનંતી કે વિકેટની બંને બાજુ વી આકારમાં તમે તમારું પોઝિશન લેવા નમ્ર વિનંતી. રામદૂત 11 અને મયુર એમ કે તેમનું પોઝિશન લઈ લે ફટાફટ. રામદૂતના કેપ્ટન અને મયુર 11ના કેપ્ટન નમ્ર વિનંતી, પ્લીઝ તાત્કાલિક આખી ટીમ લઈને ક્રીઝ ઉપર પહોંચવાનું છે. ટોસ ત્યાં થશે. નેશનલ રાષ્ટ્રગાન ગાવાનું આપણે.
આપણે અર્જુનભાઈને હું વિનંતી કરું, સાથે ભનુભાઈને વિનંતી કરું કે જે આપણે નેશનલ એન્થમ સાથે આ મેચની શરૂઆત કરવાની છે, તો તમે પણ ત્યાં બંને ટીમ સાથે જોડાઈ જવા નમ્ર વિનંતી. સાથે અન્ય મહેમાનો પણ છે, તેમને પણ વિનંતી. બને અમ્પાયર સાહેબને પણ વિનંતી, સાજિદ ખાન અને ચંદ્રપાલસિંહ રાઠોડ સાહેબને, કે તમે પણ નેશનલ એન્થમમાં જોડાઈ જાઓ. બંને ટીમ લાઇનઅપ થઈ જાય. બંને ટીમ લાઇનઅપ થવા નમ્ર વિનંતી બંને ટીમને. દરેક ખેલાડી મહેમાનો જે અહીં હાજર છે, પોતપોતાના સ્થાન ઉપરથી 2 મિનિટ માટે ઊભા થઈ જાજો. આપણે નેશનલ એન્થમ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે, તો દરેકને વિનંતી, જે કોઈ બેઠા હોય તે દરેકને નમ્ર વિનંતી, તમે તમારા જગ્યાથી 2 મિનિટ માટે ઊભા થઈ જાજો. ભારતની આન બાન શાન અને આપણે હિન્દુસ્તાનની પહેચાન, આપણા માટે ગૌરવની વાત કહેવાય કે આપણે નેશનલ એન્થમ ની સાથે આ મેચની શરૂઆત કરવાની છે. બધું કમ્પ્લીટ થાય એટલે ત્યાંથી અમને એક બંધ રાખ, તમારું પોઝિશન થઈ જાય ત્યાંથી દરેક સાવધાન મુદ્રામાં. સાજિદ ખાન રેડી? રાષ્ટ્રગાન શરૂ. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. હવે ટોસ વિધિ થાય છે. થોડી વારમાં દરેક માહિતી અહીં અમારા સુધી મળશે, અમે તમને માહિતી આપશું. वो तो सही बात है, डिसीजन ओके. यहाँ पर टॉस के बारे में तो थोड़ी जानकारी हमें मिली है. मयूर एम के गोराना टॉस जीता है, टॉस के बॉस बने. डिसीजन
थोड़ी देर में आएगा अभी। गेंदबाजी, धन्यवाद। विन द टॉस, सिलेक्ट टू फील्ड पास, क्षेत्र रक्षक गेंदबाजी। मयूर एमके के कप्तान सैम मोरी टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी है। अब भनु भाई पूछो। 8 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का सेमी सर्कल। हमारे 2 अंपायर की बात करूं, इस मैच के हमारे 2 बेहतरीन अनुभवी अंपायर मिस्टर साजिद खान चाखवा और चंद्रपाल सिंह राठौड़ आबू। हमारे फील्ड अंपायर सभी मैचेस की बात करूं, अपनी सेवाएं जो ये 2 अंपायर देंगे सभी मैचेस में। हमारे क्रिक हीरो के साथी स्कोरर की बात करूं तो मिलन जोशी। और मैं कमेंटर इसक भाई मुंद्रा। तो मेरी ओर से, हमारे कमेंटर की ओर से, ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से, साथी स्कोरर की ओर से आप सबका खूब खूब धन्यवाद करते हैं, खूब खूब बधाई देते हैं और सब खूब इतनी सारी ढेर सारी शुभेच्छा देते हैं। आप अच्छा क्रिकेट खेलो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, अच्छे मैच के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत जरूर रहेगी। यही उम्मीद के साथ फिर से एक बार हम ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। भनु भाई,
ભાઈ બંને ટીમના કેપ્ટન અને ખેલાડીઓ જરીક નિયમ વિશે મારી વાત સાંભળી લ્યો. આપણે બે રિવ્યુ બંને ટીમને આપવામાં આવે છે. રનઆઉટ, નો બોલ અને વ્હાઇટ માટે રિવ્યુ આપવામાં આવશે. રનઆઉટ, નો બોલ અને વ્હાઇટ માટે રિવ્યુ આપવામાં આવશે. તે ઉપરાંત અમારા બંને અમ્પાયર છે, એને એવું લાગે ડાઉટફુલ તો એ રિવ્યુ, અમ્પાયર રિવ્યુ તો ગમે ત્યારે લઈ શકે છે. બસ અમે શુભેચ્છા આપીએ કે રૂલ્સનો ફોલો કરો, નિયમની સાથે ખેલદિલી, ખેલ ભાવનાની સાથે તમે સારું ક્રિકેટ રમો. પીપીએલ 2026 ખૂબ જ આનંદની વાત કહેવાય છે. આ ટુર્નામેન્ટના આપણે મેન ઓર્ગેનાઇઝરો છીએ, એ લોકોએ મહેનતની સાથે મોટું મંચ આપ્યું છે આજે. એ બદલ તમામ ક્રિકેટરો તરફથી પણ આપણે જે ઓર્ગેનાઇઝર છે તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપીએ છીએ. બીજા નંબરમાં બોલની વાત સાંભળી લેજો. જે બોલ ખોવાય ગમે ત્યારે તો નવો બોલ જ આપવામાં આવશે. બોલ કદાચ ખોવાઈ જાય તો નવો બોલ જ આપવામાં આવશે. બીજું, આપણે સફળનો નિયમ નથી, એ પણ ધ્યાન રાખજો. જે વ્હાઇટની આપણે દોરી ખેંચેલી છે, પટ્ટો છે વ્હાઇટનો, એની 12 દડો જશે. પટ્ટા ઉપર વ્હાઇટ કરવામાં નહીં આવે, પણ 12 દડો જશે તો સફળનું એવું રૂલ્સ નથી કે વ્હાઇટ નહીં થાય. પટ્ટાની બહાર હશે તો વ્હાઇટ થશે. આ નાના નાના નિયમ છે, પણ તમે દરેક શાંતિથી આ નિયમનો ફોલો કરજો અને દરેકને નમ્ર વિનંતી, સારું ક્રિકેટ રમો. બીજું, વિકેટની બારોબાર દડો ગમે ત્યાં પડશે તો એ નો બોલ હશે. વિકેટની બારોબાર દડો હશે, નો બોલ હશે. પણ જે વ્હાઇટના લીટા જે વિકેટની પાછળ ડાયરેક્ટ પડશે તો એ વ્હાઇટમાં મળવો જોઈએ. ઓકે, થેન્ક યુ. गोरानंद से गेंदबाजी का कारोबार संभालेंगे अजय भाई के सेम सेम ओके थैंक यू सेम मोरी गोरानंद से स्पेल का पहला खुद कप्तान गेंदबाजी पर आए स्टैक पर ललित नो स्टैक पर केतन खूटी फील्ड की सजावट की बात करूं ललित के लिए एक मिड विकेट एक वाइड इज लॉन्ग ऑन थोड़ा रखा जरूर है यहां पर देखिए
दो खिलाड़ी को जो बाहर रखा है उसकी बात करूं, लखू आगट और मिस्टर राजन, सिंगल के चलते इस टूर्नामेंट की बात करूं तो पहला सिंगल टीम का अपना खाता खोला है ललित। अब स्टेप पर केतन खूंटी, अच्छा शॉट खेला मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद यहां पर लखू आगट, लेकिन लखू बनेंगे दर्शक। देखिए इस टूर्नामेंट की बेहतरीन बाउंड्री, पहला चौका, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में इनको दिया था मौका, इन्होंने मौके का फायदा उठाया, कमजोर बॉल पे लगाया, जोर मिलेगा 4 और पहली बॉल क्या बेहतरीन यार रूम चौका, व्हाट अ शॉट। इस बार हल्के बल्ले से जरूर खिला था, सिंगल मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। देखना होगा सेमी सर्कल 2 ओवर का जो है कितना फायदा मिलेगा, कैसा स्टार्ट रहेगा ये तो वक्त बताएगा। बॉल हवा में जरूर है लेकिन नो मैंस लैंड में गिरेगी, मौजूद अजय बनेंगे दर्शक, 4 रन। ब्यूटी, चार છે સરમણીમાં, ખોટું નથી કઈ, લાઈવ નથી પણ જે છે બંધ છે અત્યારે, હજી નેટ નથી, અડી ગયો સેમ, આયા સ્કોરર ને બધા જોઈએ, નો પ્રોબ્લેમ, જે સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટ નું જે હોય સત્ય એ જ વાત, ઓકે। और यहां पर देखिए विकेट, 2 बाउंड्री आई थी, थोड़ा अच्छा ओवर जा रहा था लेकिन हवा में बॉल ये खेली थी, लखू आगट ने कोई गलती नहीं की और पहली विकेट यहां पर टीम के खाते में, गेंदबाज के खाते में, कप्तान के खाते में, सैम मौरी, सरमन राय का, ललित का बेहतरीन ये विकेट। भनु भाई यहां पर आ जाइए, भनु भाई। बने अंपायर ने विनंती 1 मिनिट અને ખેલાડીઓને પણ વિનંતી, આપણે 35 મિનિટનો ટાઈમ આપ્યો છે, 32, ઓકે ચાલો 32 મિનિટ ભાઈ બધા માટે ટાઈમ છે, 8 ઓવરના સ્પેલ માટે એ ધ્યાન રાખજો।
32 मिनट। अगले गेंदबाज तनवीर आए अब। बेहतरीन। अब देखिए यहां पर केतन की बात करूं, एक चौका जरूर लगाया था, लेकिन अब बड़ी हिट भी आ चुकी है केतन के बल्ले से। एक बेहतरीन यहां पर काउंटर अटैक पहली बॉल पर जरूर किया था। तनवीर की गेंद की बात करूं तो थोड़ी उनके रडार में बॉल उनकी रेंज में थी और केतन ने लाजवाब बढ़िया शॉट खेला। अब इस ओवर को क्या बड़े ओवर में तब्दील करेंगे, चले तनवीर। और देखिए पहले वार किया था केतन ने, अब पलटवार किया इस गेंदबाज तनवीर ने। आई मिस यू हिट टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बॉल नीचे रही और क्या खूबसूरत बेहतरीन विकेट नंबर 2, दूसरा झटका। रामदूत 11 बखला की बात करूं, दूसरा झटका लगता हुआ केतन के रूप में। एक अच्छा स्टार्ट मिला था, अच्छी शुरुआत मिली थी केतन की बात करूं तो, क्योंकि ललित का विकेट जल्द गिरा था ऐसी बात नहीं, लेकिन केतन की बात करूं तो 2 बाउंड्री बढ़िया लगा चुके थे। थोड़ा विश्वास जता था लेकिन थोड़ी नीचे रही, पूरी तरह चकमा दिया। वापसी की है इस गेंदबाज ने, तनवीर ने, मयूर एम गोराना के लिए, क्योंकि टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी। यहां पर विकेट की जरूरत होती है और विकेट आ चुका है। नो बॉल का इशारा यहां पर। इस टूर्नामेंट की पहली नो बॉल हिट मिलेगा यहां पर। कुलदीप अभी भी आए, मौका बेहतरीन है इनके पास बड़ी हिट लगाने का और मौके का फायदा उठाया है कुलदीप जोशी ने। अपना जोश दिखाया, अपना जुनून, अपनी ताकत, अपना परचम, अपना परिचय दे दिया है। देखिए क्योंकि फ्री हिट पे ये शॉट लगा दिया है, सुपर हिट। 2 विकेट जरूर गिरी थी और जैसे ही फ्री हिट मिली पूरा फायदा उठाया, क्योंकि ये शॉट है पावरफुल। इसमें रामदूत के कप्तान आपको कभी नहीं करना मेरे यार डाउटफुल, क्योंकि ये तो है ब्यूटीफुल। फ्री हिट पे जोर लगा दिया, क्या कमाल का शॉट था। इस बार अल्टी पल्टी लगाने की कोशिश, वाइट का इशारा। अंपायर के दोनों समांतर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26, 1.5 ओवर पारी का यह दूसरा ओवर, पावर प्ले का अंतिम। तनवीर हालांकि 5 गेंद में 16 रन आए, लेकिन एक सफलता मिली अभी केतन के रूप में। 16 रन जरूर आ चुके हैं, लेकिन विकेट, बड़ा विकेट आया सेट बल्लेबाज का। हल्के बल्ले के साथ क्लिक किया यहां पर। देखिए सेंसिटिव बल्लेबाजी, क्योंकि इस ओवर की अंतिम गेंद थी। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे कुलदीप। ओवर की समाप्ति यहां पर 2 ओवर 27 रन। दो ओवर में 27, लॉस ऑफ 2 विकेट। 27 रन बने हैं 2 ओवर में।
देखिए साझेदारी की बात करूं, ओपनिंग जोड़ी की बात करूं, लेकिन पावर प्ले की बात करूं, 2 ओवर में 27 रन, अच्छे रन बन चुके, स्कोरबोर्ड पे अच्छे रन लग चुके हैं। मैंने जो बोला, विकेट जरूर 2 गवा दिए, लेकिन 27 रन, ये रन कोई कम नहीं कहूंगा। प्रोजेक्ट स्कोर 100 के ऊपर जरूर दिखता है, 108। अगर इस तरह बल्लेबाजी रही 108 तो बनेंगे। पहले सेम इस बार रिवर्सिव शॉट के लाए, फील्डर वहां पर मौजूद, और क्या बेहतरीन यहां पर कैच तो ले लिया। अंपायर का डिसीजन वेट करना पड़ेगा। ओ यूटी, बेहतरीन ये कैच लिया, शानदार यहां पर फील्डर। फील्डर कौन था, नाम आपके साहब? जयदीप। जयदीप, ये कैच तूने मेरे यार जो लिया है, अब तो तेरी जय जयकार शुरू हो चुकी है यार। क्या कमाल का कैच लिया है। शायद ऐसा लगा कि ये 6 में तब्दील हो रहा है, लेकिन सही वक्त पे जंप लगा दिया। तीसरी सफलता टीम के खाते में आती हुई सरमन मोरी की बात करूं तो कप्तान के नाते जो एक गेंदबाजी होनी चाहिए, देखिए दूसरी सफलता उनके लिए, अपनी टीम के लिए तीसरी। जो इस टीम के मुखिया सरपंच गब्बर मयूर एम गोराना की ओर से स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में आए थे सैम मोरी। पहले ओवर में विकेट जरूर मिला था। बढ़िया पंच, क्या मीठी मधुर सी आवाज निकली, और थोड़ा विश्वास भी जरूर दिखा था। पहली बॉल अगर बल्ले के बीच में आती है, सही संपर्क। भरत भाई की बात करूं, देखिए सौराष्ट्र का फिंटॉप हम कहते हैं ना, सौराष्ट्र का फिंटॉप है ये, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। हालांकि थोड़ा अच्छा हुआ थोड़ी बॉल आगे गिरी, वरना ये जिस तरह इन्होंने प्लेडोन लगाया था, पुश करना चाहता, थोड़ी अतिरिक्त ज्यादा बॉल आई थी। देखिए भरत भाई की बात करूं, आउट ऑफ कंट्री से ज्यादा समय नहीं हुआ है, लौटे यूके लंदन, वहां सीजन क्रिकेट भी खेलते थे। अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर रहा था। रौनक कीपर की भूमिका के अलावा देखिए फील्डिंग बढ़िया सजाते हैं। तीसरा ओवर जारी है, 31 रन बने, 3 विकेट जरूर गिरी, लेकिन रन गति तो बिल्कुल सही। तीन ओवर 32 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। रामदूत 11 बखला टॉस हारकर बल्लेबाजी में जो उतरी थी, गेंदबाजी की बात करूं सैम मोरी की 2 ओवर में 14 रन 2 विकेट। तनवीर की बात करूं, थोड़ा महंगा ओवर था, 1 ओवर में 17 रन, लेकिन विकेट केतन की जो मिली, सेट बल्लेबाज की आक्रामक बल्लेबाजी करे थे केतन, उनका विकेट, 17 रन आए थे जरूर, लेकिन विकेट साथ में जरूर मिली थी, क्योंकि 1 ओवर में 17 रन।
अब गोसा से ताल्लुक रखते हैं लखवागढ़ की बात करूं जो अगले गेंदबाज फ्रॉम गोसा। अच्छी गेंद थी, खिंचाव भरी गेंद थी, इतनी गति नहीं दी थी। बेहतरीन शॉट, यहां पर अंपायर का इशारा देखना होगा, 6 रन का इशारा। हालांकि अब फिर से पता चलेगा। अब हमारे साजिद खान जा रहे हैं देखने के लिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आ जो लिया आगे हालो, अंपायर ने यहां पर गुगली फेंकी है तो वो सही बात है सर, फील्डर ने दिया था, आपने उसके बाद दिया है, लेकिन साजिद खान ने यहां पर गुगली फेंकी है। अभी पता चलेगा, थोड़ा अंपायर की ओर से अभी हमें जानकारी मिलेगी। ये 4 है या 6 रन। काफी क्लोज मामला होता है, नो प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो सही समय पे उपयोग होना चाहिए। लेकिन शॉट अच्छा था आर्यन गिडा का, बेहतरीन शॉट था। अभी थोड़ा समय जरूर ले रहे हैं हमारे थोड़ा अंपायर यहां पर, क्योंकि अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। किसी को छह रन, ओके थैंक यू। ये 6 रन है यहां पर। हालांकि वहां से फील्डर ने भी बता दिया था, बाद में हमारे अंपायर सर ने भी हमें बताया था, फिर भी संतुष्टि के लिए एक और बेहतरीन। लेकिन फील्डर जरूर वहां पर है, रिवर्सिव शॉट जरूर खेला था। आर्यन की बात करूं, आहिस्ता आहिस्ता स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। अब 3.3 ओवर हो चुकी है, 40 बन चुके। प्रोजेक्ट स्कोर अभी 91 दिखता हुआ। बेहतरीन वन बाउंस चौका, हेलीकॉप्टर स्टाइल में डाउन द ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि स्लॉट में डालोगे तो पार्किंग प्लॉट में मिलेगी। मतलब वन बाउंस चौका, छोटी गेंद बड़ा शॉट, 4 रन। काफी खूबसूरत टाइमिंग के साथ, केवल पंच का एक मिठू मधुर आवाज आई थी। क्या खूबसूरत ये, कि ये बॉल भी हवा में जरूर थी, लेकिन बाउंड्री मिलेगी स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में। एक और बाउंड्री, एक और चौका। अभी तक 5 बॉल में 16 रन आ चुके हैं। इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज भरत और आर्यन। 16 रन अभी तक आ चुके इस ओवर में। लेकिन जैसे जैसे कभी कभी महंगा ओवर होता है गेंदबाज का, बाद में सफलता मिली। हमने 3 ओवर ऐसे सैलू देखे, जैसे कि देखिए राजन का ओवर की बात करूं, सेम की बात करूं, जो ये थोड़े महंगे ओवर थे, उसके बाद वापसी की और विकेट मिला। यहां पर भरत का विकेट, ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर 48 रन,
4 ओवर 48 रन 4 विकेट। रामदूत 11 बखरला। इस टूर्नामेंट के हमारे मेन ऑर्गेनाइजर की बात करूं तो मिस्टर मालदेव भाई, इसके अलावा हमारे अर्जुन भाई और बनु भाई, यानी कि मालदेव भाई मोटवाड़िया, अर्जुन भाई मोटवाड़िया और बनु भाई दासा, पीपीएल 2026 के हमारे मेन ऑर्गेनाइजर। इसके अलावा आप सबका साथ सपोर्ट सहयोग जो मिलता है वो भी बड़ी बात है। सभी को बहुत बहुत बधाई, खूब खूब धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा सपोर्ट में काफी सारे हमारे खिलाड़ी भी जुड़े हैं, अजय गोयल, महेश भाई, यानी कि बाकी। इसके अलावा जाहिद अरब, जितने नाम लूंगा उतने, लिस्ट मेरे पास काफी लंबी है बनु भाई, लेकिन सबका हम शुक्रिया अदा करेंगे। अगले गेंदबाज कमलेश सोनेरी, सोना यानी कि गोल्ड, क्योंकि इनके नाम के पीछे जो सरनेम जुड़ी है ना, कमलेश सोनेरी, सोनेरी हम कहते हैं ना गोल्ड, ये आज चमकना होगा सोना। और देखिए मैंने बोला कि इस गोल्ड को चमकना होगा क्योंकि नाम के पीछे सरनेम जुड़ी है कमलेश सोनेरी, तो ये गोल्ड चमका है मेरे यारों, विकेट मिली। और आजकल हम जानते हैं ना ये सोना हम बोलते हैं गोल्ड, आसमान को छू रहा है मेरे यारों, ये गोल्ड अब चांदी के साथ आसमान को छू रहा है। इन्होंने भी अर्श में तो अपनी जगह लगा दी, अब विकेट लाया। अब नए बल्लेबाज धर्मेश आई, 5 विकेट जरूर गिरी है। देखिए यहां पर आज का पहला मुकाबला है, लीग मुकाबला ये। वाइट का इशारा अतिरिक्त के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ काउंट में ये रन जरूर जुड़ा है। काफी खूबसूरत गेंदबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी कमलेश सोनेरी के, जिस तरह चेंज ऑफ पेस वेरिएशन कर रहे हैं, अपनी हाइट का पूरा फायदा उठा रहे हैं। कभी पेस, कभी वाइड जोड़कर, कभी स्लो ऑन से कभी वेरिएशन करते हैं। एक और अच्छी गेंद, यहां पर फील्डर मौजूद है। और 50 रन पूरे, रामदूत 11 बकला के 50 रन पूरे, 4.5 ओवर में 50। एक और वाइट का इशारा, 51 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। इस ओवर की अब अंतिम गेंद आना शेष, लेकिन देखिए यहां पर वन बाउंस चौका, अच्छा ओवर जा रहा था, विकेट इस ओवर में आया था, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद को बढ़िया फिनिश किया, यानी कि ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर के बारे में बता दो, चौका है जी हाँ। अच्छा अंपायर साहब न्या नत पड़ो ना आजूबाजू में क्या विकेट ની આજુબાજુમાં क्या ना ओले छेड़े।
5 ओवर 55 रन। बॉल हवा में, फील्डर मौजूद, लेकिन देखिए बैलेंस नहीं बना पाए यहाँ पर। ये कैच इतना मुश्किल नहीं था, पहले से शायद निगाहें सही जमा नहीं थी, और न एक और झटका, एक और विकेट था। અત્યારે 57 થયા લખુભાઈ। ઓકે લખુભાઈ 57। छठा ओवर जारी है। यहां से अब 5 विकेटें गिरी है, लेकिन इसको जो पहले 100 के ऊपर दिखता था अब 90 के अंदर। फुल टॉस गेंद थी, यहां पर नो बॉल का इशारा है। हालांकि फुल टॉस थी, साजिद खान ने पहले नो बॉल का इशारा हो चुका था, क्योंकि हाइट के चलते ये नो बॉल फ्री रहेगी। अब स्टेप पर मिस्टर डेगी, एक बेहतरीन बल्लेबाज है डेगी की बात करूं। देखिए एक बाउंड्री पहली बॉल पे लगा दी है डेगी ने, पहली बॉल पे चौका लगाया था। अब मौका बढ़िया है। हालांकि अच्छी गेंद थी, वाइड इज यॉर्कर डाल दी थी, दूर रखने की कोशिश की थी राजन ने, यानी कि तनवीर। एक बेहतरीन लेंथ जरूर देखने को मिली थी, क्योंकि फ्री थी। इसके पहले फुल टॉस थी और ये फ्री पे ज्यादा मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6-0 60। एक और अच्छा लॉन्ग ऑन की दिशा में अक्षय गोयल यहां पर खड़े, थोड़ी मिसफील, नतीजा चौका। यहां पर थोड़े नाखुश है तनवीर राजन उनकी टीम, लेकिन क्रिकेट में कभी कभी आसान बॉल होती है वो मुश्किल हो जाती है, और मुश्किल कैच आसान भी बन जाते हैं। क्रिकेट में सब कुछ, लेकिन जो हुआ उससे भूल जाइए, अगली बॉल का पीछा कीजिए, फॉलो कीजिए। जो होना था वो तो हो चुका है। इस बार काफी घुमाव मिला था, अपनी उंगलियां फेरी थी यहां पर। अब इस ओवर की अंतिम गेंदाना शेष गेंदबाज बात करूं तनवीर की, 1.5 ओवर 28 रन और एक सफलता जरूर मिली है इस गेंदबाज को। यहां पर शायद रन लेना चाहते, आजा, चला जा, रुक जा, लौट जा, देखना होगा, लेकिन पहुंच चुके थे। और रिव्यू यहां पर फील्ड वाली टीम ने लिया है ना, साजिद खान। ओके, थैंक यू। हालांकि अंपायर डिसीजन नोट आउट जरूर है, लेकिन फील्ड वाली टीम की बात करूं, यहां पर मयूर एम गोराना की डिसीजन उनकी ओर से डीआरएस लिया है। काफी आगे निकले थे यहां पर, उसके चलते ये रिव्यू लिया है। छठा ओवर जारी है। છાસઠ છે છેલ્લો દડો। હવે આમાં ડિસિઝન છે ભાઈ, નોટ આઉટ ભાઈ, ઓવર પૂરી સાહેબ, બરોબર છે।
6 ओवर 66 रन। पारिका 7वां ओवर कमलेश सोनेरी पहले ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए थे। देखिए कमलेश की बात करूं, एक बेहतरीन विकेट। अब उनके स्पेल का अंतिम दूसरा ओवर, पारिका 7वां ओवर। लगातार जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं कमलेश सोनेरी की बात करूं, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तारीफ करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की, धर्मेश और डेगी की। जिस तरह विकेटों के बीच में अपनी रनिंग के साथ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन जरूरी है, और ये बढ़िया कॉम्बिनेशन दोनों के बीच में। अच्छी फील्डिंग यहां पर, स्विप शॉट खेलना चाहते थे, हालांकि इरादा सही था, क्योंकि तनवीर जो खड़े हैं 30 गज दायरे के अंदर शॉट फाइनल की दिशा में, हल्की सी वहां से बॉल निकलती तो बाउंड्री मिलती। इरादा सही था, लेकिन अब इरादा सही बिल्कुल। देखिए धर्मेश ऑन फायर, व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल। जैसे पैर के आगे, क्या कमाल का शॉट। यहां पर पैर के आगे आप नहीं डाल सकते, उनके रडार में अगर डालोगे तो नुकसान तो होगा, पैरों के सामने नहीं डाल सकते। लेकिन यहां पर तो थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी, खराब गेंद थी, और वाइड और बाय के रूप में ये पंजा मिलेगा। और ये पंजा तो हमारे साजिद खान भी कभी कभी बोलते हैं ना, ये बिना कागज 5 लाख की लोन मिली मेरे यारो। ये पंजा वैसा है, बिना मेहनत बिना कागज। आईसीआईसीआई 5 लाख की आपको लोन दे तो क्या चाहिए आपको घर बैठे। ये पंजा 80 बन चुके हैं। वोड़ा डिलीवरी जड़ में, ये गेंदबाज का हथियार होता है। देखिए स्कोर की बात करूं, 8-0 80। अब इस ओवर की अंतिम गेंदाना शेष। एक और बेहतरीन धर्मेश। देखिए धर्मेश की बात करूं तो इनका कद छोटा है लेकिन काम बड़ा है, क्योंकि क्रिकेट में न कद बड़ा न पद बड़ा, जो विकेट पे खड़ा वो सबसे बड़ा। ये छोटा फटाका बड़ा धमाका जरूर है मेरे यारो। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 86। अब अंतिम 6 गेंद, अंतिम ओवर, जट मंगनी पट बिहा, यानी कि अंतिम ओवर है। बस अभी सगाई करो और अभी ब्याह करो। डेथ ओवर, आज नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये तो वैसा ही नजारा है यार, क्योंकि अंतिम ओवर है, डेथ ओवर। स्ट्राइक पर डेगी। लेकिन धर्मेश की बात करूं, 13 गेंद में 24 रन, 13 गेंद 24 रन, 2 6 1 चौका। डेगी 3 बॉल में 6, 200 की स्ट्राइक रेट डेगी की। एक बेहतरीन चौका लगा चुके डेगी। अब लखवागट, लेकिन यहां पर 1 बाउंस चौका, एक आसान सा कैच होना चाहिए। वहां पर इन्होंने थोड़ी बल्लेबाज को मदद मिली, क्योंकि अगर ये बॉल बाउंड्री तक नहीं जाती थी, इनके हाथों से छुई और झुम झुम चौका। ये कैच इतना मुश्किल नहीं था। क्षेत्ररक्षक अच्छा होना चाहिए। विकेट धर्मेश का रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। ये कोई बल्लेबाज इनका विकेट नहीं ले पाया, लेकिन धर्मेश के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि बल्लेबाज ने इनका विकेट लेने की कोशिश की, विकेट नहीं मिला भनु भाई, लेकिन इनके लिए 2 शब्द कहूंगा। अरे यारो, हमें तो उस फील्डर राजन ने लूटा, गेंदबाजों में कहां दम था। मेरा विकेट गिरा, वहां रास्ता सही था मगर मंजिल थोड़ी दूर थी।
कि उस फील्डर ने लूटा, विकेट गिरा, लेकिन अपना कार्य करके गए। एक अच्छी पारी। अब आए चिराग सोलंकी, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है चिराग सोलंकी की बात करूं, लेकिन यहां पर देखिए पहली बॉल का सामना करेंगे। इस ओवर में पहली बॉल पे बाउंड्री आई थी, चौका आया था, मिस फील्ड के जरिए कैच ड्रॉप हुआ था, बाद में रनआउट। अब फील्ड में थोड़ा बदलाव देखिए, डीप पॉइंट को बाहर भेजा, मिड ऑफ को अंदर बुला लिया है, थोड़ा बदलाव किया है, यहां पर अमन को बुलाया है। तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर लखू आगट की, जिस तरह इन्होंने अमन को अंदर बुलाया 30 गज दायरे के अंदर, वैसी गेंद डाली, काफी क्लोज मामला, अमन के आगे थोड़ी गिरी थी, यानी कि बढ़िया सोच उनकी। फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी जरूरी है, किस्मत का भाग्य का साथ मिले न मिले वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आपकी कोशिश फील्ड के मुताबिक बॉल डालने की होनी चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए अब डेगी ने बोला चलो धर्मेश, मेरी वजह से आपका रनआउट का विकेट जरूर गया था, लेकिन अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। एक बेहतरीन डेगी। अब इस ओवर की अंतिम गेंद आना शेष 8वें ओवर की अंतिम गेंद 97 बने, 7.5 ओवर 97, लॉस ऑफ 6 विकेट डेगी। 6 गेंद में 16, 266 स्ट्राइक रेट। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देगी। लखू की बात करूं, एक कोई 5 ओवर में अभी तक 27 रन जरूर आए, एक विकेट जरूर मिला है। हालांकि इस ओवर में एक विकेट जो आया वो तो रनआउट के रूप में, लेकिन इसके पहले जो जरूर एक विकेट मिला है लखू आगट की बात करूं। और अभी देरोदर के अंदर लखू की बात करूं, लखू आगट की, तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था उस टूर्नामेंट में। एपल कप की बात करूं, देरोदर के अंदर शानदार अपना परिचय दिया था वहां पर देरोदर की। देखिए ये अंतिम गेंद थी, सेम बोरी मौजूद है यहां पर, क्या दूसरे के लिए निकलेगा यहां पर? अच्छा थ्रो यहां पर देखना होगा, और बेहतरीन थ्रो, विकेट आया। अंतिम गेंद पर सिंगल जरूर मिला, दूसरे में लौटे थे रनआउट के रूप में विकेट, 7वां विकेट जरूर गिरा, लेकिन स्कोर 98। अब 99 का टारगेट यहां पर, अगर ये मुकाबला जीतना है यहां पर तो 99 का लक्ष्य मिला है यहां पर। मयूर एम के गोराना, मयूर एम के यानी के गोराना की ये टीम 99 करवाना, 98 થી 99 કરવાના। ઓકે, આ ટુર્નામેન્ટના આપણા મેન ઓર્ગેનાઇઝરની વાત કરું તો માલદેભાઈ મોઢવાડિયા, અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા અને ભનુભાઈ દાસા, તે ઉપરાંત વાત કરું બધાનો સાથ અને સહકાર સપોર્ટ મળ્યો છે, તો દરેકનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને અમારી આ કમિટી તરફથી દરેક ક્રિકેટરોનું પણ અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। જે 8 ટીમો અહીં રમવા આવવાની છે, અત્યારે આવી છે 2 ટીમ, એ દરેકને અમે આવકારીએ છીએ। ગોરાણા ગામની અંદર તમે આવ્યા, અમારા મહેમાન બન્યા છો, એ બદલ તમારો પણ અમે સ્વાગત કરીએ છીએ। બીજી અગત્યની સૂચના, અમારા અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, એટલે અર્જુન બમ આપણે કહીએ ને,